Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography, and what is our topic today? Methods of conservation of resource. There is a most important point arrive here. Methods of conservation of resource here. The first point according to here, it is a necessity to the creator awareness. It is a necessity to the create awareness about the preservation and conservation of resource among the people. They should be made aware of harmful result of large scale of destruction of the natural resource. There is a most important first point here, and the next point here, afforestation. Afforestation is the preventing the falling of the immature and young tree and creating awareness amongst the local people about the planting and nurturing trees may be help in a conserving forest. There is the second point is also important here, and the next here, third, trace of farming. Trace farming in a hill regions, a contour plunging, controlling the shifting and cultivation and overgrazing and plunging in the gulf. Some of are the impaired method of the soil conservation here. The next point here, fourth, construction of dam to be impound rainwater. Use of sprinkler and drip and trickle irrigation techniques. Recycling of water for industrial and domestical purpose will be help in a conservation of the enable water resource. The next point here, minerals are no renewable resource, so they need to be conserved through their efficient utilization and development of better technology and extraction and purification, recycling of mineral and use of substitute. The next here, 6 point, non-conventional resource of energy here. The non-conventional source of energy here is an important example. Solar, wind and water will be have to be developed in order to be save a conservational source of energy. There is important in the point in the box. There is a note down your note copy. There is a most important point here. A conclusion also. Conservation resource a mean judicious and planned use of natural resource by avoiding their wastage, misuse and overuse. And next here, it is a necessity to the create awareness among to people about the preservation and conservation of resource here. And the next also, no renewable resource need to be conserved and used with utmost of care. There is an important point here. हमारा जो ये अगला पॉइंट आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है, संसाधनों के संरक्षण की विधियां। देखिए, संसाधन के संरक्षण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है हम आने वाले फ्यूचर के लिए भी उसका जो है इस्तेमाल करने लायक रख सकते हैं। और इस तब संभव होगा जब हम संसाधन संरक्षण की विधियों को जानें और समझें। और ये आप यहीं पे समझ सकते हो कि संसाधनों को संरक्षण किस विधियों के द्वारा जो है किया जा सकता है और संसाधन हमारे लिए कितने उपयोगी है संरक्षण करने के लिए। तो कहते हैं ये आवश्यक है कि लोगों के मध्य संसाधनों के जो है परिरक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए। प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमानों पर जो है विनाश के घातक परिणाम के बारे में लोगों को जागरूक भी बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक जागरूक ये नहीं होंगे तब तक नहीं हमारा जो है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण रह सकता है। सरकार बेशक रूल रेगुलेशन बनाए, लेकिन जब तक लोग जो है इस पर पालन नहीं करेंगे तब तक उस रूल रेगुलेशन का कोई अर्थ और कोई मान्यता नहीं रह जाती है। दूसरी पॉइंट यही दर्शाता है कि वन रोपण। देखिए, वन रोपण ही इसका एक सबसे सटीक और सबसे इम्पोर्टेंट रूल रेगुलेशन हो सकती है, क्योंकि वन ही जो है प्राकृतिक में संतुलन जो है कायम रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो अभिवृक्त तथा युवा वृक्षों को काटने से रोकना तथा लोगों में वृक्ष के रोपण तथा पोषण के बारे में जागरूक उत्पन्न करना वनों के संरक्षण में सहायक सिद्ध हो सकता है। और इसमें जो है हर एक व्यक्ति का जो है महत्वपूर्ण योगदान भी हो सकता है। जब तक प्रत्येक व्यक्ति इसमें जागरूक नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, कहते हैं संसाधन संरक्षण करना संभव नहीं रह जाएगा। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पहाड़ी क्षेत्रों में जो है सीढ़ीदार कृषि करें।
देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में कृषि करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सीढ़ीदार कृषि की जाए, क्योंकि इससे जो है हमारे प्राकृतिक संसाधन के जो है दोहन से बचाया जा सकता है। समुद्र रेखाओं के अनुरूप जो है जुताई, झूम कृषि पर जो है नियंत्रण, अतिचराई और अवनवीनीकरण को रोकना मृदा संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियां हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाती है कि झूम कृषि जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि झूम कृषि खेती आप जानते ही हो कि जिसमें जो है कुछ समय के लिए कृषि की जाती है, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो झूम कृषि कहलाता है। और ये जो है हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो है बहुत ज़रूरी है कि झूम कृषि को जो है रोक लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए। और अति चराई यानी जो कृषि के भी क्षेत्र होते हैं, घास को जो है पशुओं द्वारा चरा दी जाती है, तो इस पर भी नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। और वन नालिकाओं को रोकना जो कि बहुत ज़रूरी है, मृदा संरक्षण के भी विधियों में अपनाया जा सकता है। कहते हैं अगर वर्षा जल को रोकने के लिए बांधों का निर्माण करें, फुहारा, डीप या ट्रिक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाए जो पौधों तक ही पानी पहुंचे, व्यर्थ में पानी न जाए। औद्योगिक एवं घरेलू उपयोग हेतु जल का जो है पुण्य चक्रण अमूल्य जल संरक्षण में सहायता करेंगे। तो ये काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के संसाधनों के लिए, उपयोग के लिए। देखिए, कहते हैं जल ही जीवन है और इन चीज़ों को जो है पुण्य सही रूल रेगुलेशन से इस्तेमाल करके ही इसको बचाया जा सकता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो साफ हो जाता है कि खनिज अनवीकरणीय संसाधन है, इसलिए कुशल जो है उपयोग निकालने का शोधन भी जरूरी है। देखिए, अगर आपको पता हो कि खनिज जो है और नवीकरणीय संसाधन है, यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका जो है बहुत ही कुशल उपयोग करना चाहिए और विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने पर जो है जोर देना चाहिए। और इसके संरक्षण पर भी ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण बात रहता है। कहते हैं ज़्यादा अच्छी तकनीक का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और खनिज का पुण्य चक्रण तथा स्थानोपन्न के लिए उपयोग द्वारा इनका जो है संरक्षण किया जाना चाहिए, जो कि और भी महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को बचाने के लिए ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर पवन जल का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, पारंपरिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, तो कई मायने में जो है हम प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर था। यहाँ पर हमारे समक्ष एक बॉक्स आया है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस बॉक्स में जो है सारांश के रूप में हर एक बात को दर्शाया गया है, जिसे आप समझ सकते हो। संसाधनों के संरक्षण से तात्पर्य उनके विवेकपूर्ण एवं जो है नियोजित उपयोग के साथ ही उनके अपव्यय, दुरुपयोग एवं अति उपयोग से बचाव करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का पुण्य उपयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। यह आवश्यक है कि लोगों को जो है मध्य संसाधनों के परीक्षण एवं संरक्षण के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए, और ये तभी हो सकता है जब इस पे जागरूकता के लिए लोग कदम उठाएं और प्रत्येक लोग जो है इस पे बहुत विवेकतापूर्ण जो है अपनी विचारधाराओं को रखें। कहते हैं अनवीकरणीय साधनों का संरक्षण एवं सर्वाधिक उचित उपयोग आवश्यक होती है, तो इसलिए अनवीकरणीय संसाधन है उसका जो है हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए और जितना हो सके जो है नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, जिससे अनवीकरणीय संसाधन की संरक्षण किया जा सकता है।